فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہیں اپنی جانوں میں، وہ کتاب مبین کے اندر جو ہے وہ درج ہے، محفوظ ہے. اور یہ ہم نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے بہت پہلے اس کو جو ہے وہ لکھ دیا تھا، تاکہ کوئی بھی آدمی جو ہے جو اس کو نقصان پہنچے اس پر افسوس نہ کرے، اور جو اس کو فائدہ پہنچے اس پر وہ خوشی نہ کرے اور اترائے نہیں، تکبر نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے کو، شیخی بگڑنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے ہیں. نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جبریل امین علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کی، اس کا بڑے اختصار کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا تھا. ان وصایا میں سے 5 وصیتیں تھی. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء جبریل الیہ، جبریل علیہ السلام میرے پاس جو ہے وہ تشریف لائے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عش ما شئت فإنک میت. پہلی وصیت یہ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزاریے، جتنی مرضی گزار لیجیے اور جیسے مرضی گزار لیجیے، آخر آپ نے ایک دن فوت ہونا ہے. یہ پہلی وصیت تھی، اس کے بارے میں نے تفصیل سے بات آپ سے کی. دوسری وصیت ہے وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے، ایک دن آئے گا آپ کی محبت اور اس کی محبت کے درمیان جدائی پیدا ہو جانے والی ہے. آپ اس کو یا وہ آپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ روانہ ہو جانے والی ہے. یہ دوسری وصیت ہے، انشاءاللہ اسی کے بارے میں آج بات کریں گے. تیسری وصیت ہے وَعَمَلْ بِمَا شِئْتَ، جو مرضی عمل کرنا ہے کر لو، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، تجھے اس کا بدلہ دیا جائے. اور چوتھی وصیت تھی وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، مومن کی عزت اور مقام اور شرف اور اس کی بزرگی رات کی نماز میں ہے، تہجد کے اندر ہے. وَعِزُّهُ، 5ویں وصیت، اور مومن کی عزت اور اس کا جو ہے وہ مقام استغناء عن الناس، لوگوں سے مستغنی ہو جانا ہے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا ہے. تو آج کی وصیت وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جس بندے سے، جس عورت سے، جس انسان سے، جس باپ سے، جس بیٹے سے، جس اولاد سے، جس مال سے، جس دولت سے، تجارت سے، کاروبار سے، کوٹھی سے، اپنی کار سے، اپنے بنگلے سے، اپنے بزنس سے، اپنی فلموں سے، اپنی ڈراموں سے، اپنی چوری سے، اپنی ڈکیتی سے، اور اپنے تمام برے اعمال سے اور اپنے تمام اچھے اعمال سے، جس سے بھی آپ نے محبت کرنی ہے کر لیجئے. ایک نہ ایک دن آپ کو یہ کام چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. ایک دن یہ محبوب چیز، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ گندی ہے اور نکمی ہے، اسے آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری محبوب چیز ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنی. یہ محبوب چیز وہ اچھی چیزوں میں سے ہے، یہ بری چیزوں میں سے ہے. انک مفارق، آپ اس کو چھوڑ کر اور جدا کر کے جانے والے ہیں. یہ معاملہ 2 طریقے سے جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے.
کہ انسان دنیا کی چیزوں کو باغے مفارقت دے جانے والا ہے۔ جو سی بھی کوئی چیز ہے دو طریقوں سے داغے مفارقت ہوتی ہے۔ ایک طریقہ دنیا کا نظام ہے کہ انسان ایک چیز آج آپ کے پاس ہے، کل کو وہ چیز آپ کے پاس نہیں کسی اور کے پاس چلی جائے۔ آپ دنیا میں زندہ ہے، زندہ ہونے کے باوجود انسانی قوا صحیح اور سلامت ہونے کے باوجود انسان اپنی بہترین زندگی گزار رہا ہے، لیکن اچانک ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان اپنی محبوب چیزوں کو اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا کر دیتا ہے۔ مثلا بیٹی ہے، انسان بڑے ناز اور نخرے سے پرورش کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پڑھاتا ہے، جوان ہو جاتی ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور پھر بالآخر ایک نوجوان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہے۔ تو نے ناز و نعم میں پالا ہے، تو نے سونے کے چمچ میں اس کو کھانا کھلایا ہے، یہ تیری زندگی کی تو نے محبت کر لی، اب اس کے بعد وہ پرائے ہاتھوں میں جا چکی ہے، وہ کیا شروع کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ بات کے معاملے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، جس بیٹی سے تو نے محبت کی ہے ایک دن آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو روانہ کر دینا ہے اور خود اپنے گھر سے نکالنا ہے، خود کہنا ہے چلے جاؤ بیٹا، تمہارا گھر جو ہے وہی گھر ہے، اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ طیبہ طاہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدرت پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ منافقین نے الزام لگا دیا، حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، مہینہ بھر وہ بیمار رہی اور پریشان رہی بیماری کی وجہ سے۔ آخری ایام میں ان کو جا کر پتا چلا کہ میرے اوپر الزام لگ چکا ہے۔ جب پتا چلا الزام لگا ہے تو بہت پریشان ہوئی، بیماری پہلے تھی اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کر دیا، اصل اپنے گھر جانا چاہتے، گھر چلی گئی، ماں کے پاس گئی، سلام کیا اور جا کر جو ہے وہ خبر کی تصدیق چاہی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جتنا پریشان تھی میں نے دیکھا میری ماں اتنی پریشان تھی، یعنی وہ پہلے پریشان ہو چکے تھے، ان کو یہ خبر کوئی نئی نہیں ملی تھی، مجھے تو نہیں ملی تھی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ کو خبر مل چکی ہے؟ کہا مل چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے بیٹا آپ کیوں گھر آئے؟ یہ بات کہی، صحیح بخاری کے الفاظ، بیٹا کیوں گھر آئے؟ آپ کا گھر وہ ہے، ماں نے بھی کہا بیٹا اپنے گھر چلے جاؤ، باپ نے قسم اٹھا کے کہا بیٹا میں تجھے قسم دیتا ہوں تم جاؤ، تمہارا گھر وہی ہے، وہیں جا کر جاؤ۔ یہ معاملہ جب تک حل نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے گھر میں رہو، تمہارا اصلی گھر کیا ہوئی۔ بیٹی سے جتنا مرضی پیار کر لے، آخر ایک دن آپ نے روانہ کرنا ہے اور آپ نے خوش ہونا اس روانگی کے اوپر۔ اپنی محبوب چیز کو جدا کرتے ہوئے انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ سب گوش ہو گئی۔ بیٹا ہے، محبت کر لیجیے، پرورش کیجیے، پڑھا لیجیے، تربیت کر لیجیے، اس کو کاروبار پہ لگا دیجیے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لیکن بالآخر شادی ہو جانی ہے، اس نے اپنے کاروبار میں مشہور ہو کر آپ کی ڈیوٹیوں سے اور آپ کی محبت سے بہت پیچھے ہٹ جانا ہے۔ بیوی کے ساتھ مشغول ہو کر، بچوں کے ساتھ مشغول ہو کر وہ بیٹا جو پہلے تھا وہ پہلے والا نہیں رہنا ہے۔ آپ چھوڑ دیجیے، جس کے ساتھ محبت کرنی ایک وقت تک کر لیجیے، اس کے بعد آپ نے چھوڑنا۔ اور اسی طریقے سے آپ والدین سے محبت کر لیجیے، والدین سے بھی یہی محبت ہے۔ جب تک آپ شادی نہیں کرتے خوب خیال رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی بیوی بچوں میں کاروبار میں پڑ جاتا، یقیناً پہلے والے 24 گھنٹے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی۔ اچھا میں کاروبار پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے پتا کرتا ابو جی میں ابھی یہ کاروبار دکان پہ ہوں، شام کو آ کے میں دوائی لا کر دیتا ہوں، رات کو آتا ہوں میں دیکھتا ہوں، آج مجھے فنکشن پہ جانا ہے، فنکشن پہ واپس آ کے میں دیکھتا ہوں۔ پھر انسان کی وہ ہمدردیاں وہ پہلے جیسی نہیں رہتی ہیں۔ جان لو جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اسے چھوڑ جانے والے دوست احباب پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندہ ہے انسان، دن بدلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، آج آپ کا دوست ہے کل کو اس کا ہے، کب کوئی دوست یار جو ہے وہ آنکھیں دکھا کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آج آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والا کل کو آپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ یا کہتے ہیں اصدقاء اور احباب اور دوست ان کا پتہ مشکل وقت میں لگتا ہے،
मुश्किल वक्त में सब पीछे साथ हो जाते हैं, तो इक्का दुक्का जो है वो दोस्त जो है वो साथ रह जाते हैं। ये माल, ये दौलत, ये मोहब्बत जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये तो आप सब लोग कहते हैं कि ये हाथों की मैल की है, आज आपका है कल को किसी और, आपने भी मैंने भी और दुनिया में ऐसी है, रातों रात करोड़पति से लाखपति इंसान जो है वो बन जाता है, और आपने भी देखा लाखपति से इंसान जो है वो करोड़पति बन जाता है, रातों रात जो है वो फकीर हो जाता है, रातों रात गनी हो जाता है। ये माल किसी का नहीं बनता, आज आपके पास है कल को मेरे पास है परसों को किसी और के पास है, इसके आने और जाने में देर नहीं लगती और पता नहीं चलता। यही जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहबब मन से जिस माल से मोहब्बत करनी है कर लीजिए, इन्ना का मुफारिक हो, अब इसको छोड़कर जाने वाले। और ये कुर्सी, ये ओहदा, ये वजारतें, ये सदारतें, ये चीफ आर्मी स्टाफ और ये चीफ जस्टिस, जितने भी ओहदे हैं बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे हैं, लाखों रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं, रिश्वतें भी मिलती हैं, और भी कारोबार के बेहतरीन जराए हैं, बड़ा मालो दौलत है, बड़ी तरक्की है, बड़ा उरूज है, एक कलम से इंसान जिंदगी के फैसले करता है। लेकिन अहबब मन से इन्ना का मुफारिक हो, जितनी इससे मोहब्बत करनी कर लो, एक दिन आपने छोड़कर चले जाना है। दुनिया वाले देखते हैं, कुर्सियां वही हैं, असेंबली हाउस वही हैं, और जो है वो ओहदे वही हैं, यही सिक्योरिटी गार्ड और ये बॉडी गार्ड वही हैं। आज आपको तख्त के ऊपर बिठाए हुए हैं, आपकी हिफाजत पे और आपके इस्तेकबाल के ऊपर मामूर हैं, और कल हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं यही सिक्योरिटी वाले पकड़कर जेल की सलाखों में डाल देते, यही सिक्योरिटी वाले, यही बॉडी गार्ड पकड़े सिक्योरिटी वाले जेलों में इंसान को उसी को डाल देते हैं जिसका वो इस्तेकबाल किया करते थे, जिसको सलूट किया करते थे, और फिर दिन बदलता है उसी को सलाखों से निकालकर तख्त में बिठा दिया जाता है, और जो तख्त में बैठा हो उसको तख्ता दार से लटका दिया जाता है। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले जो है वो हमें बात बतलाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, अहबब मन से इन्नका मुफारिकुहु, जिस चीज से भी आपने मोहब्बत करनी कर लीजिए, दिल खोल कर कर लीजिए, एक दिन आपने इसको जुदा कर देना, आपने इससे जुदा हो जाना। ये एक तरीका कार है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, बड़े खूबसूरत लफ्ज आपने इरशाद फरमाए, अहबिब हबीबका औनम्मा असाई यकून बगीज़का यौमम्मा व अबगिज बगीज़का औनम्मा असाई यकून हबीबका यौमम्मा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया जिससे मोहब्बत करनी है मोहब्बत कीजिए, थोड़ा सा हाथ ढीला रखेगी, जिससे मोहब्बत करनी है थोड़ा सा हाथ हल्का रखिए, बहुत ज्यादा हद से न बढ़िए। क्यों? यही महबूब हो सकता है किसी दिन आपका मबगूज बन जाए, आपका दुश्मन बन जाए, फिर इंसान की बर्दाश्त से बाहर होगा। सारी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाती, लेकिन इसी पत्थर के ऊपर तो मुझे भरोसा था, यही मुझे हवा देने लगा है, यही मुझे तंग करने लगा है। इंसान उसके गम में अपने आप को जो है वो हलाक कर डालता है। आपने सुना ऐसा ना, अहबिब हबीबका औनम्मा असाई यकून बगीज़का यौमम्मा, जिससे मोहब्बत करनी है कर लीजिए, लेकिन दरमियाने दर्जे की मोहब्बत रखिए, क्योंकि एक न एक दिन हो सकता है कि आपको उसकी दुश्मनी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़े। और इसके उलट फरमाया वह अहबिब बगीज़का औनम्मा असाई यकून हबीबका औनम्मा, जिससे आपने दुश्मनी करनी है, बुग़्ज़ रखना है, नफरत रखनी है, कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा हाथ ढीला रखिए, थोड़ा सा ढीला रखिए। बिल्कुल उससे जो है वो मैंने उसको सजा हस्ती से मिटा दिया अपनी, और हाथ से उसका नाम खारिज कर दिया, वो मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। ऐसा ना कीजिए, आखिर इंसान है, कोई बात नहीं, तू भी इंसान है, उससे गलती हुई है, तुझसे भी हो जाती है। ऐसा ऐसी नफरत और ऐसा बुग़्ज़ न रखिए, कल को वक्त आ सकता है आपको उससे मोहब्बत करना पड़ सकती है, वो आपका महबूब बन सकता है। इसलिए पहले शदीद नफरत करने वाला शदीद जो है कैसे बन जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंसान जो है वो मजबूर हो जाएगा कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन फिर सोचेगा मैं किस चेहरे के साथ, किस मुंह के साथ उसके सामने जाऊं, मैं उसका सामना करने के लिए किया, मैंने तो उसको ये कहा, मैंने तो उसको वो कहा, मैंने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले, उसको सब मालूम है, मैं कैसे उसके सामने जाऊं, मैं नहीं जा सकता। कहा ऐसा ना की। पंजाबी वाले इसी का शायद तर्जुमा किसी ने किया है, इतने मीठे ना बन जाओ
कोई हड़प कर जाए और इतने कड़वे ना बन जाओ तो इसको छुई कर। इसलिए मीठे भी मोतबे अंदाज से बनिए, ज्यादा मीठे बनेंगे तो शुगर बन जाएगी, और इतने कड़वे भी ना बन जाइए इंसान के जिस्म से शुगर वैसे खत्म हो जाए, इंसान हलाक हो। इसलिए आपने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मोहब्बत कीजिए, जिस चीज से मोहब्बत करनी है कर लीजिए, एक दिन आपने उसको जो है वो जुदा करना है या आपने उससे जुदा हो जाना। एक तरीका तो ये हुआ, इंसान जिंदा है, दुनिया में है, और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंसान का साथ छोड़ जाती हैं या इंसान इनका साथ जो है वो छोड़ जाता है। दूसरा तरीका, उसका कुछ हिस्सा मैंने पिछले दर्स में भी जिक्र किया, जुमा में जिक्र किया था, इस माशे सईदना कमैयत, जितनी जिंदगी गुजारनी है गुजार लीजिए, आप मरने वाले हैं, इंसान फौत होने वाला है, और फौत होकर ये तमाम महबूब चीजें छोड़कर जाने वाला, ये तमाम चीजें छोड़कर जाने वाला, या आप नहीं फौत होते तो ये चीजें फौत हो जाएंगी, दुनिया से खत्म हो जाएंगी। जितनी मोहब्बत कर लिया कर लीजिए, आप एक दिन इन तमाम चीजों को, बीवी को छोड़कर चले जाने वाले हैं। बीवी अगर जवान है, वो पीछे से आपसे शादी करने के लिए तैयार बैठी है, जैसे ही फौत हो इंसान वो तैयारी करती है और शादी कर लेती है। और बेटे फौत होने का इंतजार करते हैं, अब तो फौत होने का भी इंतजार नहीं करते, दुनिया तो बहुत कुछ जानती है, वो तो जिंदगी में ही जायदाद के ऊपर कब्जा कर ले, बाबा तूने क्या करना कर, छोड़ता क्यों नहीं, ये खजाने की चाबियां हमें देता क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी है, हमें दीजिए। मरने के बाद तो बाप को एक दिन को याद करता है, कोई 2 दिन करता है, भूल जाता है, और खजाने और दुकानें और बिजनेस जो है वो कब्जे में कर अपनी जिंदगी में जो है वो मशगूल हो जाता है। ये माल मनाज, ये दोस्त अहबाब, जितने भी लाडले और जितने भी प्यारे हैं, सिर्फ कब्र तक जाते हैं, सिर्फ कब्र तक जाते हैं, और कब्र में सिर्फ 2 गज का कफन का टुकड़ा जो है वो दे देते हैं, वो भी मिट्टी में गुसीदा हो जाता है, किसी ने नहीं जाना। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज फना हो जाने वाली है और तुमने भी फना हो जाना है। इसलिए इस दुनिया की चीजों से ज्यादा मोहब्बत न कीजिए, एक दिन मर जाना है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है। ये सारी चीजें तेरी नहीं है, किसी और की है, जिसकी है उसने ले लेनी है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा फिक्र न कर। सिर्फ एक तेरे रब की वाहिद जात है जो जिंदा रह जाने वाली है, जिसको दवाम है, जिसको बका है, जिसको हमेशी हासिल है, वो अज़ल से है, वो अज़ल तक रहेगा, इसलिए तूने जो है वो फना हो जाना है। कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामती फर्दा, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कल क़यामत के दिन आएगा, अकेला ही आएगा, कोई बेटी नहीं साथ लेकर आएगा, कोई बेटा नहीं लेकर आएगा, कोई बाप, कोई माँ, कोई माल, कोई दौलत, कोई तिजारत, बिजनेस, बंगला, कोठी, कार नहीं लेकर आएगा, कुछ नहीं साथ लेकर आएगा, अकेला आएगा, मेरे पास आना है, और उस वक्त जो है वो मैं फिर मामला करूंगा जो मैंने करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया था, इन्नकुम तुहशरूना कुफातन उरातन गुर्रन, लोगों तुम्हें जो है उसी तरह से कल उठाया जाएगा जैसे तुम पहले बच्चे पैदा हुए थे, नंगे होंगे, नंगे पांव होंगे और बगैर खतनों के होंगे। हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो मामला फिर बड़ा गड़बड़ है, अर्रिजाल वन्निसा यंजुर बादुहु इला बाद, फिर क्या मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे को देखेंगे? कहा, या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यहुम्महुम ज़ाल, इससे जो है वो मामला कहीं ज्यादा सख्त होगा, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं होगी, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं होगा, हर किसी को अपनी ही नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई होगी, किसी को किसी दूसरे की जो है वो फिक्र नहीं होगी। यही कहा है अहद मन शेख फइन्नका मुफारिकुहु, कल वो एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें कोई किसी को याद नहीं करेगा, जब तक कामयाबी नहीं मिल जाएगी। अगर कामयाबी मिल गई तो फिर बाद में किसी को याद कर लेगा, अगर कामयाबी जब तक नहीं मिलती है तब तक वो सारी महबूब चीजें छोड़ देगा और वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसको अपना ही ख्याल होगा। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उस दिन हर बंदा दूसरे बंदे से भागेगा, भाई भाई से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, रिश्तेदार रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब दोस्तों से, हर एक दूसरे से भागेंगे।
लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअन युगनी, उस दिन हर बंदे को अपनी पड़ी हुई होगी जो उसको दूसरों से जो है वो मुस्तगनी कर देगी, बेपरवाह कर देगी। इसलिए कहा लोगों किसी भी चीज के अंदर ज्यादा दिल न लगाइए, एक एतदाल के साथ माकूल अंदाजे के मुताबिक जिन चीजों से मोहब्बत लगाने वाली उनको लगा लीजिए, फिर उसको ذہن में रख लीजिए कि इसने छोड़ना है या मैंने इसको जो है वो छोड़कर चले जाना है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं हो। खास तौर पे दो चीजें हैं, कुछ नेक अमाल हैं, कुछ बुरे अमाल। बुरे अमाल फिल्म है, चोरी है, डाका है, जना है, शराब है, जुआ है, रिश्वत है, बेईमानी है, ज्यादती है, हक मारना है, लोगों के साथ जो है वो जुल्म करना है, ये सारे बहुत सारे लोगों को उनके ये महबूब और प्यारे मशगले हैं, उनको भी यही कहा जा रहा है अहद मनशिद इन्नका मुफारिकुहु, जितनी मोहब्बत करनी है कर लो, आखिर तुमने इस फिल्म को एक दिन छोड़ना है, इस गंदे ड्रामे को, इन पिक्चर को, इन चीजों को, सब चीजों को तुम्हें छोड़ देना, हमेशा नहीं रहनी, कब तक देखता रहेगा। और फिर एक दिन आना है, ये डाके भी खत्म हो जाने, तेरी चोरियां भी खत्म हो जानी, तेरी बेईमानियां, फराड, धोखे, ये सब कुछ यही पे रह जाना है। और फिर अगला टुकड़ा आ रहा है, कहीं न कहीं मस्जिद जिसका बदला मिलना है, ये तीसरी वसीयत में है। इसलिए दुनिया में ये काम न कर, ये गंदे भी हैं, गलत भी हैं, ये महबूब बनाने वाली चीजें है भी नहीं, और फिर हमेशा तेरे साथ रहने वाले नहीं, तुम्हें उनको छोड़ करना। और नेक अमल करने वाला, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, सच बोलने वाले, ज़कात देने वाले, सदका खैरात करने वाले, मिस्कीनों के साथ उसमें सुलूक करने वाले, यतीमों के सरों पे दस्ते सदका रखने वाले और गरीबों की मदद करने वाले, लोगों के साथ उसमें सुलूक और अच्छा जो है वो बर्ताव करने वाले, याद रख लो ये सारे काम एक दिन खत्म हो जाने, जितने करने हैं कर लो, सभी मौका है, इनको कर लीजिए आधे मन से। ये अगर मोहब्बत करने वाले हैं कर लीजिए, आपको महदूद मुद्दत दी गई है, एक दिन आप उन तमाम चीजों को छोड़कर जाने वाले हैं। फिर क्या होगा, इज़ा मातल इंसान इनका तान हो अमल हो, जब इंसान फौत हो जाएगा सारे अमल जो है वो मुनक़ति हो जाएंगे, इल्ला मिन सलाह, तीन चीजें रह जाएगी, वो भी वही है जो जिंदगी में कर ली, जिंदगी के बाद करने की फिर मौका नहीं मिलेगा। और वो वलदुन सालिह, अपना बच्चा तो एक नेक छोड़ दो, एक बच्चा तो नेक बना लो, एक बच्चे की तरबियत तो अच्छी कर दो, ताकि जब आप फौत हो जाए आपका जनाजा तो सही कर सके, और जनाजे के बाद जब आपको दफन कर दे, जब अपने लिए दुआ मांगे, अपने वालिद के लिए, वालिदा के लिए दुआ तो मांगे, बहन भाइयों के लिए कौन दुआएं मांगता है, दुनिया में तो याद नहीं रखता है, मरने के बाद उसने याद रखना है, लेकिन माँ बाप को कभी इंसान को याद आ जाते हैं दुआ में, उसका नाम तो ले देता है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया। जब ये आयत पढ़ता है उसे माँ बाप याद तो आते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ये जब दुआ पढ़ता है तो उसको माँ बाप तो याद आते हैं, ये तो दुआ करेगा। किसी दुआ में भाइयों का तो जरा कम ही है, वो अमूमी दुआ है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जितने भी बहन भाई गुजरे हैं या अल्लाह उनको माफ कर। लेकिन सगे बहन भाई स्पेशल उनका जिक्र नहीं है, वालिदैन का यहाँ पे दुआओं में जिक्र है, ये याद आते हैं। लेकिन किसको आते हैं, एक बच्चा जिसको ये दुआ थी, जिसने पढ़ा है कि माँ बाप के साथ उसने सलूक मरने के बाद भी जारी रहता है, दुआ कर लेते हैं, ऐसा नेक बच्चा छोड़ दीजिए। 5-6 बच्चे हैं, एक बच्चे को तो दीन पढ़ा दीजिए, एक बच्चे को दीन सिखा दीजिए, एक बच्चे को दुआएं सिखा दीजिए, एक बच्चे को अच्छी तरबियत कर दीजिए, आपका ये सदका जारिया मरने के बाद भी जारी रहेगा और आपके लिए दुआएं करता रहेगा। और इल्म का काम ही इल्म छोड़कर चले जाए, किताब लिख दें, किसी को पढ़ा दें, जिसको भी पढ़ा दें, अपनी औलाद में से आप बगानों को जिसको भी पढ़ा दें, आपका इल्म जो है वो पढ़ा हुआ है, उससे लोग जो है वो फायदा उठाते रहेंगे। और सदक़तुन जारिया, या कोई सदका जारिया छोड़, नेकियां जिंदगी में कर लीजिए हर मन से, और माल से मोहब्बत करने वाले करते रहो, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते रहो, अपनी कोठी बैंक बैलेंस बनाते रहो, लेकिन आखिरत के लिए भी कुछ बैंक बैलेंस बना दो, एक मस्जिद बना दो, एक मदरसा बना दो, किसी यतीम को सहारा दे दो, किसी बेवा को सहारा दे दो, जब तक वो फायदा उठाते रहेंगे
तब तक आपकी नेकियों में इजाफा जो है वो होता चला जाएगा। वगरना फौत हो गए तो ये माल दूसरों ने कब्जे में कर लेना, किसी ने सत्ता खराब नहीं करना। चलो बाबा जायदाद छोड़ गया है, उसमें से हम 1/3 खुद ही निकाल लेते हैं, शरीयत ने इजाजत दी 1/3 की वसीयत कर जाए, लेकिन वो करना भूल गया, नहीं कर सका, औलाद तो कभी नहीं कर कि चलो 1/3 जो है वो हम निकाल देते हैं, ये सदका कर देते हैं, बाकी विरासत तकसीम कर लेते हैं। एक एक पाई पे लड़ मर जाते हैं, मुकदमे जो है वो हार जाते हैं और जीत जाते हैं, जिंदगियां हार जाते हैं एक एक पाई के लिए। बाद में किसी ने सत्ता खराब नहीं करना कहा, अभी मन से जितनी माल से मोहब्बत करनी है कर ले, और ये मोहब्बत करने वाला तरीका है, इसको थोड़ा सा सत्ता कर, सदका जारिया बना दे, तारे से आगे तेरा आगे वाला मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाए। फरमाया ये अमल जो है वो मुनक़ते हो जाने वाला, बुरे अमल भी मुनक़ते हो जाने हैं, नेक अमल भी मुनक़ते हो जाने हैं, उनको करो नहीं, उनसे बच जाओ, जिंदगी में छोड़ देना है, और इनको कर लो, ये महदूद मुद्दत ही है, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन और सुनहरी जो है वो मौका है। कहा आबे मुंशे का मुबारक, जिससे मोहब्बत करनी है कर लो, एक दिन आप इसको छोड़कर जाने वाले। इस टुकड़े के अंदर एक और सबक भी है, और वो सबक है इंसान को मशाकिल के वक्त, मुसीबत के वक्त, महबूब चीज की जुदाई के वक्त जो दिली रंज होता है, जो दिली तकलीफ होती है, सदमा होता है, इंसान के ऊपर घबराहट और परेशानी और टेंशन आती है, उसका इस टुकड़े में बेहतरीन इलाज बतलाया गया। आगे मन से पहले दिन से याद रख लेना, तेरी महबूब बेटी, तेरा महबूब बेटा, तेरा महबूब बाप, तेरा महबूब माल, तेरी महबूब कुर्सी एक दिन तुझको छोड़कर जाने वाली है, सब्र कर लेना, अपनी जान उसके पीछे हलाक न कर देना। तू बेटे के लिए दुनिया में नहीं आया, तू बेटी के लिए दुनिया में नहीं आया, तू बाप के लिए नहीं आया, माँ के लिए नहीं आया, तू सिर्फ माल के लिए नहीं आया, बल्कि तू अपनी जिंदगी आखिरत को बनाने के लिए दुनिया में आया है। इसको तो तूने छोड़ ही देना है, चला गया तो फिर क्या हुआ, कोई मसला नहीं। ये तो सारी दुनिया का उसूल है, जो दुनिया में आता है उसने जाना ही जाना है। पहले दिन से ये बात ध्यान में उठा ले कि जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, एक दिन इस चीज में मुझे छोड़कर चले जाना है, वो जितनी भी प्यारी क्यों नहीं है। ये इंसान को हौसला मिलता है, अगर ये हौसला मौजूद हो तो कभी भी इंसान को फिर हार्ट अटैक नहीं है। इंसान को हार्ट अटैक उसी वक्त होता है जब ये हौसला ना हो, जब पता ही ना हो कि मैंने छोड़ना या इसने छोड़ जाना। जब ये इल्म नहीं होता तो इंसान एकदम जो है वो बेवकूफ है जो कहता है वो मेरी 50 लाख की लॉटरी निकलाई, सभी निकलाई, लाओ तो जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ, लेने जाता बड़ा खुश, मिठाइयां तकसीम करते हुए जाता, 50 लाख की लॉटरी, रातों रात में अमीर बन गया हूँ, अब मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे, मेरा ये भी मंसूबा वो मंसूबा। वहां जब लेने के लिए जाता है वो कहते हैं हजरत साहब का नाम तो है लेकिन ये 1 नंबर पीछे, वो गश खा के वहीं पे गिर जाता और कहता वो लॉटरी भी गई और मैं भी गई। ये ना अहद मन से जिन्ना का वो फारिक हूँ, तुम्हें छोड़ देना, वो कभी मिलनी नहीं, ये तो मिली नहीं, उसके पीछे जिंदगी हार गया, मिल भी जाए तब वो चली जाए तो तुम्हें छोड़ना ही छोड़ना है, कोई मसला नहीं। ये तसल्ली है दिल को, वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दी। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम। फरमाया लोगों सब्र करने वालों को बशारत दीजिए, जब उनको मुसीबत आती है तो वो जगह फजा घबराहट मगरिया नौहा नहीं करते, चीखो पुकार नहीं करते, इस जुबान से कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बात ठीक है, गमज़दा है दिल, लेकिन अल्लाह की अमानत की ले गया। मौता इमाम मालिक के अंदर एक वाकया मौजूद है, गालिबन कासिम बिन मोहम्मद, उनकी जब बीवी फौत हो गई तो उनके पास मोहम्मद बिन काबल कुरदी रहमहुल्लाह वो आए उनको तसल्ली देने के लिए, ताज़ियत करने के लिए। हमारी तज़ियतें भी हैं, फातिहा पढ़ लो, तो फातिहा का ना मैयत के साथ को तल्लक है ना बंदे के साथ को तल्लक। अजीब इत्तेफाक है, ये लोग समझ नहीं आती, ना गौर करते हैं, अल्लाह ने अकल दी है, खुद पढ़िए, नुसूस निकालिए, हदीस निकालिए। मौलवी जो बताते हैं फातिहा पढ़नी चाहिए तो पूछिए आया कहाँ है, किसी से पूछिए तो सही जरा। ये जो फौत हो जाता है इंसान उसकी फातिहा पढ़ते हैं, आया कहाँ फातिहा, मैं उसकी फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, तो भाई कहाँ आया है, कौन सी कुरान मजीद की आयत है जब बंदा मर जाए तो फातिहा पढ़ो, कौन सी हदीस है जिसमें लिखा है फातिहा पढ़ो। और फिर मुझे बताओ इस फातिहा में
मैयत के लिए क्या है, और इस फातिहा में जो घर वाला उसके लिए क्या है, जिसके साथ आप ताजियत करें उसमें क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह की। रहमान रहीम, वो रहमान है रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद लेते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, यहूदियों का ईसाइयों का रास्ता नहीं। इसमें कहाँ मैयत, कहाँ घर वाले, तो थोड़ा सा तो सोचिए, तो घर में जाकर करनी तो दुआ कीजिए, मैयत के लिए करनी है। और जिन्नम ये बात आ गई, मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि सब्र कीजिए, सब्र करने वालों को बशारत दी गई है। ये जुदा चीजें जो है वो जुदा होने वाली हैं, और जुदाई के ऊपर सब्र करने वालों को अल्लाह ताला देता है। बर्दाश्त कीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह हम भी तेरे ही हैं और तेरे लिए जो है वो सारी चीजें तेरे पास जो है वो आने वाली हैं। ये जब इंसान कहता है तो दिल को हौसला होता है, तसल्ली हो जाती है। इंसान जो है वो परेशान नहीं होता, तो वो बंदा परेशान हो रहा है, बीवी फौत हो गई, तो मैं जिक्र ये कर रहा था, वो फातिहा पढ़ने नहीं आया, वो ताजियत करने के लिए आया। ताजियत क्या कर रहा है, कहता मैं आपको तसल्ली देने के लिए आया। तसल्ली ये है कि बनी इसराइल का मुझे एक वाकया का पता चला। बनी इसराइल में एक बंदा था, बड़ा फकीर था, बड़ा आबिद, जाहिद, तहज्जुद गुजार, आलिम था। उसकी एक बीवी थी, बड़ी महबूब बीवी थी, खूबसूरत थी, बड़ी शदीद मोहब्बत करता था। वो फौत हो, वो बेचारा बड़ा गमज़दा हुआ, बड़ा परेशान हुआ, इतना ज्यादा परेशान हुआ उसने अपना घर का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकलना ही बंद कर दिया। लोग बड़े परेशान हुए, जानते थे कि घर वालों से मोहब्बत करता है, लेकिन इस हद को अंदाजा नहीं था। सब लोग परेशान हुए। एक औरत कहने लगी मैं जाती, उसने जाकर दरवाजा खटकाया। मैं कहा क्या मसला है, कहा मैंने मसला पूछना, कहा किसी और से पूछना, कहा नहीं मैंने मसला आप ही से पूछना है और आपसे दिल मिसाफा बात करनी है, मुझे बहुत जरूरी मामला है, बस आप मुझे बात जवाब करके बंद कर देना दरवाजा, मुझे जरा बुला लीजिए घर। उसने जब काफी देर तक उसने दरवाजा ना छोड़ा तो उसने आने की चाहती। जब वो घर में आई तो उसने कहा पूछो क्या पूछना है। कहा मैंने सवाल ये करना है, मेरी एक पड़ोसन है, उससे मैंने एक दफा जेवर उधारा लिया था इस्तेमाल करने के लिए, शादी पे पहनने के जाना, उसने दे दिया, मैंने लिया, उसे पता नहीं याद नहीं रहा या उसने जानबूझ के छोड़ दिया, मेरे पास बड़ी मुद्दत तक पड़ा रहा, मैं सारी जिंदगी उसको इस्तेमाल करती रही। बड़ी देर के बाद मैं खुद भी आगे लोगों को बाहर दे देती हूँ इस्तेमाल कर मुझे वापस, वो मेरे पास ही रहा। फिर एक दिन वो मेरे घर में आ और वो कहने लगी कि ये जेवर जो तुम्हारे पास था मुझे दे दो यार, वापस कर दो। तो अब मैं वापस नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास इतनी देर हो गई है, मैंने इस्तेमाल किया है, वो तो दे दिया, मुद्दतें हो गई। तो वो आदमी कहने लगा नहीं जी आपकी ज्यादती है, वो उसकी अमानत है कि वापस करो। कहने लगे मुझे बहुत देर हो गई इस्तेमाल करते हुए, मेरा हक बनता है। कहा अगर तुझे देर हो गई फिर तो तुझे पहली सूरत में फुर्सत देनी चाहिए, क्योंकि उसने इतना एहसान किया तुझे पूछा नहीं, अब तुम फौरन उसको अदा कर दो। तो कहने लगी है मेरे भाई फिर आपको अफसोस करने की क्या जरूरत है, ये बीवी थी आपके पास अल्लाह की अमानत थी, उसने ले लिया तो फिर क्या हो, इसके ऊपर गमज़दा होने की क्या जरूरत है। चुनाचे उसको समझ आ गई और अल्लाह ताला ने एक औरत के जरिए से एक बहुत बड़े आलिम को जो है वो समझा दिया मसला। आबे मन से इन्ना का मुफारिक हो, जिससे भी मोहब्बत करनी आप कर लीजिए, एक दिन आपने छोड़ना है तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना, उस माल को उस महबूब चीज को तो छोड़ दो लेकिन सब्र का दामन न छोड़ना, तो तुम कामयाब और कामरान हो जाओगे। बात तो और भी ज्यादा थी लेकिन वक्त खत्म हो गया है, इसी पे जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करूं अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी चीजों से खूब मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए जो हमारे लिए मुस्तकबिल में काम आने वाली है, और जब हमसे ये महबूब चीजें छूट जाए, खत्म हो जाए, निकल जाए, तो अल्लाह ताला हमें सब्र करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। और जो गंदी चीजें हैं अल्लाह तबारक ताला हमें इनकी मोहब्बत में डाले ही नहीं, और इनसे हमें दुनिया में भी नफरत करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।